Good afternoon, everyone. How are you all? I hope you people are doing fine. So, day before yesterday, we started one particular chapter in which we started discussing the basics of periodic properties, periodic classification, and periodic properties. Today, we will take a step ahead in that particular chapter and we will discuss. It is obviously lecture number 2. For me, it is lecture number 2. For you, it is lecture number 3 because before I started the chapter, obviously one chapter was taken by man. So that was earlier efforts in periodic table like Dobereiner law of triads, again Newland law of octaves, Lothamer curves, Prost theory, everything was discussed in these were the preliminary efforts in exactly finding one order to define or to normalize these elements. So this classification now is going to take another step today. We will discuss and I will start from the topic where I left you in the last class. So we were discussing some S block elements. We discussed that these are 100% metallic substances. Then we shifted to P block elements, which are placed on the right side, extreme right side of periodic table. Today we will discuss D and F block elements in detail, and then we'll jump to periodic properties. I will definitely let you know what are periodic properties. And before entering to periodic properties, one very significant topic, very important topic is effective nuclear charge. I will definitely give some examples based on the topic of effective nuclear charge. So let's get it started. Okay. So am I audible, visible? Everything is okay. So everyone, please just one thing. Good afternoon. Very good afternoon, everyone. So let's get started. So it is periodic properties from and for your information, because many of you are new to me and I'm new to you. So it is my very second lecture with you. So myself, Ashwani Tyagi, I'm BTech graduate from IIT Roorkee in chemical engineering, and I've been teaching for years now, 1.5 decade past, produced so many results. Now the turn is yours. So let's get started. In the last class, we were discussing F block elements. F block elements are what? Those elements in which last electron of the configuration, mind you, last electron of the configuration does not represent block, only differentiating electron. It means the last electron would enter to F block, F subshell. Last electron would be present in S subshell. So in which last electron is present, that is not, these are not categorized by the presence of the last electron. They are classified on the basis of entry of the last electron. So that subshell which receives the last electron are called, sometimes like you people have different names. In school, your name might be Anuj, but at home, Gungun, Chiku, Tunmun, Chinku, Tinku. So just like that, they too have many names, one nickname. So for that electron which is received, the last electron which is received by the subshell. So this classification is entirely based on that particular thing only. So in S block, last electron is received, last electron is present not. Okay, make a clear distinction must be made between these two. Okay. I can see you, Anuj Negi. How are you, Anuj? So you just showed up for a while and then disappeared. So it is good only. So thoda thoda, should I use mixed language as I'm instructed to do, or English will do? Tell me fast. In both of the languages, I'm comfortable. Pure Hindi. Obviously, chemistry I cannot teach you in pure Hindi. So there will be English language used during the class. So let's get started. बच्चों, F block elements. F block elements are those elements. Please आप अपने comments करते रहिए. Okay? I need your comments and participation during the class, ताकि हम इसे वाकई एक टाइम पास ना बनाएं. It should really be effective as physical coaching. So here we go. P block elements, because your class, let me tell you, your class is being
taken from Kota only. Most of the time I take your classes from Kota. I will take your classes from Kota and sometimes from Delhi. So I really want you to exactly participate in the class so that you exactly feel the level of the content which is being provided during the class, and by making sure that no stone is left unturned. So आप भी participate करें और मैं भी आपको कुछ चीजें बताऊं यहाँ पर. So F block elements, when I shared with you what is F block elements, so F block elements are those in which last electron enters into F subshell. So last time I left you there only. So you all are 11th. Yesterday, actually in 12th class, I started teaching periodic table. After that, I realized that the class students who are attending the class, they belong to class 12th. They are 12th. Then I switched to alcohols, ethers, and phenols. So that shouldn't happen today. So here we go. Anuj, please pay attention. Last electron enters into F subshell. Into F subshell of the F subshell which is anti-penalty mate. Do you understand what is anti-penalty mate? Which is anti-penalty mate. So do you know what is anti-penalty mate? Anti-penalty mate means simply, anti-penalty mate means third last shell. Anti-penalty mate means third last shell. Ultimate means last shell, which is often we call it valence shell. Next one towards the nucleus will be penalty mate, and the next one will be anti-penalty mate, and so on. So here we go. All F block elements belong to third group. All F block elements belong to third group. Next, they are all metals. It means in D block, in F block, and as well as in S block. What are the nature of the element? What is the nature of the element? These all elements are metallic. That is why the entire periodic table contains approximately 78.6% metals, and remaining are metalloids and non-metals. So non-metals are very less, despite you find the complete compounds, because they have covalent bonding nature. Because of that only, if you see this board, it is containing plastic, it is containing UPVC also along with the metal. So these are non-metals only. This pen is made up of styrene, which is metal, non-metal again. Okay, my body, your body contains non-metals. This fabric also contains non-metals. So everything, there's so many, means I can clearly say that metals constitute minerals and some ionic compounds. Non-metals are non-metals form compounds which are the part of everyday's life. So here we go. Within each series, in each series, properties of the elements are quite similar. Means किसी भी series में जाएंगे, properties of elements would remain nearly same. Their atomic radii will be same. Their effective nuclear charge will be same. Their ionization energy will be same. Their size will be same. Atomic radius is same. Obviously, size is going to be same. Now, elements coming after uranium are called trans-uranium elements, and they are man-made elements. They are what? Man-made elements. It means these elements do not exist naturally. ये element naturally exist नहीं करते हैं. They are synthetic elements or man-made elements. For example, 112 copernicium is Einsteinium, copernicium. These are man-made elements. Next, they are also called as inner transition elements because they are being taken, they have been taken or extracted from transition element, from within transition elements. From transition elements, they belong to third group, which is the part of transitional elements. So they are in turn called as inner transition elements. Next, outermost shell is incomplete, were also referred as rare earth element. They were also called as rare earth element in earlier days because their oxides were rare in those days. Remember, elements were not rare.
only oxides of the elements were rare in the nature. That is why we used to call them. So we have in F block, we have two series. One series is, one is 4F 1 to 14, 5D 0 to 1, and 6S2, and another one is 5F 1 to 14, 6D 0 to 1, and 6D 0 to 1, and next is 7S2. So these are 5F series elements and these are 4F series elements. These are 4F series elements in which, in these elements which are also called lanthanoids. क्या कहते हैं इनको? Lanthanoids. In lanthanoids, F orbital of the fourth subshell, fourth orbit, F orbital of the fourth orbit is successively filled from F equals to 1 to F equals to 14. In case of 5F series, these are called actinoids. What do we call them? Actinoids. And in this series, 5F subshell is successively filled from thorium to lawrencium. So here we go. Remember one more thing which is naughty. So you have to make a note of that. What is note? That 4F electrons are more strongly attracted by the nucleus. Are more strongly attracted by the nucleus than 5F electrons. ये बात दिमाग में रखनी है कि 4F electrons are more strongly attracted by the nucleus in comparison to 5F electrons. It means they are more buried towards nucleus. They are more attracted by the nucleus. So they are more inclined towards the nucleus. So taking out 4F electron would require huge amount of energy. It means these electrons are not going to take part in chemical bonding. It means these electrons will show reluctance to participate in chemical bonding. That is why lanthanoids show less variable oxidation states than actinoids. In lanthanoids, what is? Lanthanoids form lesser number of compounds than actinoids. Lanthanoids are lesser reactive than actinoids. They form lesser covalent bond, lesser bonds, lesser metallic bonds, or lesser bonds in terms of numbers in comparison to actinoids, which are very reactive. So more compounds of actinoids are found in than lanthanoids. Have we understood this? Please let me know, at least thumbs up. Okay, single-handedly, if I'm just as if I'm recording the lecture, that doesn't solve the purpose. Unless there is a two-way communication, had, if we wanted to just have one-way communication, we would record the lectures and we'll upload simply. So to just have a two-way communication with you, to make you understand, to exactly understand your problems during the lecture, these live classes are being taken. So please let me know, everybody. Yes, those who have joined, please, who Damatri, Kurja, Chinda, Chikhaldara, Maharashtra, right? Chikhaldara, Maharashtra. I might not be able to make. Please point out if my pronunciation is wrong of any sort of, like, there are so many different names. Only Anuj Negi, Anish, Rohan, EMRS, then Lafa, Lahol, next Shelti, next these all. Please, those coordinators, sirs and ma'ams, I would request to make students participate inside the class. Aditya, last year there was a student, last year in 2022, a student of mine who got 9th rank in JEE Advanced, Sai Aditya. He was from South India only. So Aditya,
Na? Get inspired at least. You share a common name. So here we go. F orbitals. Next one is lanthanum. So is this F block? This is called 4F series. It is 4F series. It is 5F series. 4F series and 5F series. 4F series. If I talk about 4F series, please let me know how many of these. It's a simple question. How many of these elements have d orbital electrons? Simple question. Every one of you has to answer. इनमें कितने एलिमेंट्स के पास में डी सबशेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं? हाउ मेनी लैंथेनॉइड्स हैव इलेक्ट्रॉन्स इन डी सबशेल? डी सबशेल ऑफ पेनल्टीमेट शेल, 5D सबशेल। 5D सबशेल में कितनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? नीचर जल्दी से बताइए एवरीवन। 5D सबशेल में कितनों में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लैंथेनॉइड्स के अंदर? एवरीवन, yes. So now EMRS, all students in lanthanoids, how many atoms, how many elements have d orbital electrons in 5D subshell? Electrons in 5D subshell. Tell me fast. Yes, if you could. F block, not if there will be two different questions. One is F block element, another is actinoids. So remember, lanthanum is not considered in actinoids. Remember, lanthanoid, this is not actinoid. This is not an actinoid. ये actinoid में नहीं है. It is not an actinoid. यहां से शुरू होता है सीरियम. कहां से शुरू होता है? सीरियम. सीरियम, देन जो भी है डाइमियम, देन नियोडाइमियम, देन प्रोमेथियम, समेरियम, यूरोपियम, गैडोलिनियम, टर्बियम. सो ये सारे के सारे एलिमेंट्स, ऑल दीज एलिमेंट्स मे नॉट हैव. Anybody would like to answer, or should I just keep going like this? Tell me fast. Should I keep going like this, or you are going to answer? Anuj, waiting for you. Yes. Anybody? Okay, let me give you one very simple question, very simple answer to your question, or to my question only, because I will ask the question and I will only answer inside the class. So here it contains 5D1 and it contains 5D1 and it also contains 5D1. Remaining do not contain any d electron. Remaining do not contain any d electron. They have exceptional electronic configurations. They have exceptional electronic configurations. Here I am giving you homework. You can share in the WhatsApp group. Okay, you can share in the WhatsApp group, बच्चों. What? How many of these of actinoids, how many of the actinoids have or possess exceptional electronic configuration? Exceptional electronic configuration, ELECTRONIC, electronic configuration. So it is though a very sluggish chapter, but we will make it very interesting from now onwards. Now, F block elements, remember, actinoids and lanthanoids have been placed at the bottom of the periodic table to avoid undue expansion of periodic table. Because if we place these in third group, there will be undue expansion of periodic table. So they have been placed separately beneath under the periodic table, just for the sake of simplicity, to avoid unnecessary expansion of periodic table. Next, first inner transition 4F series contains 14 elements from cerium to lutetium, and next one is 5F series that contains 14 elements from thorium 90 to lawrencium 103. 104th, which is rutherfordium, is not F block element. It is a P block element. Sorry, it is a D block element. Rutherfordium will be 104 and that is D block element. Next one,
Next one, we discussed prediction of group and period. So we discussed this. We have already had, it was a quick recap. Next one, deciding the D and F block elements, we discussed few questions. The question was this one, and the next one, this. Okay, you answer this question. It is the first question, and I hope you're gonna know, you are not going to let me down. Just let me know fast. What is in the following electronic configuration? दिए गए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में the value of n-1 is 6. Value of n-1 is what? 6. The configuration will be of lanthanoids, D block elements, actinoids और S block element. Your time has begun. आपका वक्त शुरू हो चुका है. तो चलिए, वेरी गुड. पीएम श्री EMRS कहां से जवाब आया है? ये एक बच्चे ने जवाब दिया है. इट इज डी ब्लॉक एलिमेंट. वेरी गुड, एक्सीलेंट. लुक, this is what needed inside the class. Everyone should take part, and I will definitely make you participate inside the class. Slowly you will definitely be activated. D block Lahore. Next, again D block. It is a D block element in the following. So remember, first of all, D block elements cannot have 3. Remember, S and P block, they have or they possess only one incomplete shell. Incomplete shell. Shell means orbit, which is outermost. It is outermost. It is outermost, outermost. But in case of D, they have 2 shells which are incomplete. They have n-1 and n shell. Incomplete shells that are incomplete. These are incompletely filled, right? Now, in case of F block, they have 3 shells. All outer 3 shells, n-2, which is called anti-penultimate, n-1, which is called penultimate, and n. 3 shells which are incomplete. Here 3 shells are incomplete. So it must be F block element. That is for sure. So D block element, those who gave the answer D block element, I immediately said excellent. Excellent means you spoiled the question. Excellent means whenever you will spoil the all concept in the question, then I will use the terminology excellent. Now, D block element, it is not D block element configuration. So here, it cannot be S block element as well. So there is a competition between F actinoids and lanthanoids. So let's use the information provided in the question. n-1 equals to 6. So n would be equal to 7. N means principal quantum number. N means period. N means it is period. So it is 7th period. 7th period means actinoids. So it is actinoid. So actinide or actinoids. So that will be the answer. Thank you very much. And those who got excellent, it's a very, I would say, very easy chapter. So slowly, as we move towards physical chemistry or organic chemistry, you will get some more interesting chapters, but we'll make this interesting too. No issues at all. Next one, atom having valence shell electronic configuration 4s2 and 4p2 would be in. So in case of p subshell electrons, it is going to be p block element. For p block element, group number, GROUP, group number, as I told you, is equal to valence electrons plus 10. So valence electrons 2 plus 2, that is 9. So we will keep 4 today because today is Wednesday. So 2 plus 2 is 4. So here we go. Another is 10. 10 plus 4, that is 14. So it would belong to 14th group or 4th A group.
14th or 4th A group, right? So it is 4th A group, and obviously this is 4th period. So I hope you understood the point. यहां पर क्या हो जाएगा, ये एलिमेंट, दिस एलिमेंट वुड बिलोंग टू 4th period and 14th group or 4th A group. So answer will be C. C will get you the right answer. Right answer would be C. Right answer would be C. Easy peasy. Yes. So if you find a question easy peasy lemon squeezy, just let me know. So let me tell you one thing. Even teaching or studying for any competitive examination is not at all boring. It is really interesting. If you have yourself fully involved in the preparation, it will be like reading a comic book. And if you are not, it will be reading like a psychology book or some philosophy book for the first time. It's as boring as possible if you are not involved, and it is as interesting as possible if you are involved. So it is up to you. For me, it is interesting only. Next, effective nuclear charge. Effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? Suppose you opened one factory in which the total production or day's profit is 50 lakhs. Day's profit is what? 50 lakhs. But your manager, whom you appointed as manager of the factory, informs you that every day's profit is only 30 lakhs. It means there is a shielding of 20 lakhs. So what happens is, in multi-electron species, that nucleus is present at the center of the atom. There is a first orbit, there is a second orbit, there is a third orbit, there is a fourth orbit. So what they do, they have some crabs-like nature. They keep fighting with each other. So what? Electrons would fight. So this electron which is present in the outermost shell would be repelled by all these electrons which are present inside. So these electrons would repel the outer electron. These would repel the outer electron. Even those which are present in the same orbit would also repel the outer electron. So this repulsion will be outward. Repulsion will be away from each other. So it will be directed away from the nucleus, and the nucleus would be attracting this. So there is a force of attraction. You know, there is a force of attraction towards nucleus, say Fa. Let's use common physics, electrostats. And there is repulsion between these two, between so many, there is repulsive forces. There are so many repulsive forces. Due to repulsion, there will be outward force, which is Fr. So net repulsion is Fr and net attraction is Fa. So net attraction is Fa, repulsion is Fr. So what would be the net force experienced by the outer electron? It will be Fa minus Fr. Similar, it would be Fa minus Fr. Suppose there is a block and it is being pulled from in this direction by force F1, and in this direction it is being pulled by force F2. F2 is much larger than F1. So this block will start moving in this direction. It is moving in this direction with velocity, with speed u or velocity u. So obviously the net force experienced, if it is a frictionless surface, net force will be F1, F2 minus F1, just like that. The net force of attraction felt by the outer electron from the nucleus is called effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? The net force of attraction. Net force of attraction or actual force of attraction. The actual force of attraction, the actual force of attraction, the actual force of attraction felt by the outer electron is called effective nuclear charge. What is effective nuclear charge? Obviously it is not going to be the actual
it is not going to be the nuclear charge present. It will be nuclear charge minus repulsion. It will be nuclear charge minus repulsion. It will be nuclear charge felt by the electron minus repulsion. So had there been no electron in between, so it would have felt what? Fa. But because of the presence of these electrons, it would be repelled outward. Because of that, this force of attraction will decrease, and the actual force in this scenario felt by the outer electron is called effective nuclear charge. So effective nuclear charge is what? This is effective nuclear charge. So remember, if there is a nucleus like this, it is a nucleus here. Now there are electrons, electron number 1, electron number 2, electron number 3. In the outer electron, there are 2 electrons. So they would repel each other. So if we calculate on this electron, so suppose there are 1, 2, 3, 4, 5. 5 electrons are there. So it would be repelled by as maximum as 4 electrons. It is not possible for it to repel itself. It is not going to repel itself. So remember, suppose there is a crowd. Suppose you people are sitting with your friends, and there are in number total 10 friends are sitting, and because of some issue you people started fighting. So if you are being beaten badly, so how many, what would be the maximum number of your friends who turned enemy and trying to change your entropy that time? So that will be 9 only. If 10 friends were there, only 9 can beat you at a time. You won't beat yourself. Okay, it is not possible that you are doing this. Getting my point? So here we go. Whenever you are calculating effective nuclear charge, you have to subtract 1 electron, because that is the test electron. Test electron would not be repelled by itself. So here we go. Now, what is the effective nuclear charge? Let me tell you effective nuclear charge. How do we calculate effective nuclear charge? I'll give you the exact idea. How do we calculate effective nuclear charge? Effective nuclear charge. Remember, it's a tricky calculation of effective nuclear charge. How do we calculate exactly? Here we go. Suppose there is S and P electrons, only S and P electrons. Suppose we are talking about S and P electrons only. So S and P electrons, they repel S and P electrons. They are confined in a very small space. So charge density or electron density would be high. So here, if S and P electron is present repelling enemy electron that is present in the valence shell, in the shell where test electron is present, and at shell only, in that case, there will be repulsion of 0.35 per electron. So what would you do? 0.35 into number of electrons present in the valence shell apart from test electron. Next, 0.85 by n-1 shell electrons, then 1 per electron, and then 1 for all n-2 electrons in any case. In case of D and F, 0.35 for valence as that of the case of sp. Now, in case of n-1, if electron is from, अगर इलेक्ट्रॉन n-1 शेल से है, तो f ऑर्बिटल d and f इलेक्ट्रॉन के लिए shielding will be 1 per electron. I will calculate. I'll give you few examples. So here for n-2 onwards, there will be shielding of 1 per electron, no matter whether it is s or p electron or d and f electron. So let's find, suppose, and please give me thumbs up this time at least. Suppose there is a cesium. Suppose if I take the example of cesium. What is the atomic number of cesium? All guddus and gudiyas? Yes, tell me fast. Yes, all frogs. Speak up now. What is the atomic number of cesium? Atomic number of cesium. How many? जो सुन रहा है वो बोलेगा. So those who are paying attention, definitely they will respond to it. Yes, tell me fast. What is the atomic number of cesium? Yes, Sonal, PM Shri, or what? Actinoids, those who answered previous question. Please answer this. What is the
atomic number of cesium. Cesium's atomic number you started. Very good, very good. Excellent. Atomic number, excellent again, mind blowing this time. Cesium has atomic number 55. Cesium has atomic number 55. Very good, very good, very good. So cesium, really, 21. Please use bilingual. Okay, bilingual. Okay, cesium एटॉमिक नंबर इज 55. सीजियम के लिए एटॉमिक नंबर क्या है? 55. फॉर सीजियम एटॉमिक नंबर इज 55. सो हियर वी गो. एटॉमिक नंबर 55. इफ आई टेक अफबाउस प्रिंसिपल, तो इलेक्ट्रॉन का, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. चलो, सो लेट्स राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बच्चों. सो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वुड बी व्हाट? टेल मी फास्ट. इट वुड बी 1s2, then 2s2, then 2p6, 3s2, 3p6, 3d10, 4s2, 4p6, 4d 55, 4d10, 4f0, and 5s2, 5p6, and 6s1. This will be the electronic configuration. Electronic configuration of cesium क्या होगा? Electronic configuration of cesium is this. How many shells are there? 1, 2, 3, 4. What is the value of n here? The value of n is equal to 6. So sixth orbit में एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. Only one electron is present in sixth orbit. And वही क्या हो जाएगा? टेस्ट इलेक्ट्रॉन. It will be treated as टेस्ट इलेक्ट्रॉन. ये टेस्ट इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव करेगा. टेस्ट इलेक्ट्रॉन, इसी के ऊपर तो निकाल रहे हो आप रिपल्शन, तो इसी को हमने क्या ले लिया? फ्रेम ऑफ रेफरेंस. इसी के ऊपर निकालेंगे हम. तो यहां से हमारे पास ये क्या हो जाएगा? दिस शेल विल बी, ये शेल हमारे पास क्या हो जाएगी? इट विल बी n-1. दिस विल बी n-2, एंड ऑल दीज विल बी, this will be n-3. So all these will be considered as n-2 onwards. बात समझ में आया? ये सारे जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये n-2. समझ गए ना n-2 कैसे लेते हैं? सपोज मेरे पास ऑर्बिट्स कितनी है, ध्यान से देखिए. सपोज मेरे पास ऑर्बिट n की वैल्यू क्या है? सपोज मेरे पास 7th पीरियड है. प्लीज नोट करना ये बात. सपोज मेरे पास n की वैल्यू 7 है, तो मेरे पास n-1 कितना हो जाएगा? सिक्स्थ ऑर्बिट हो जाएगी. तो सिक्स्थ ऑर्बिट में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आएंगे दे विल बी ट्रीटेड एज n-1 इलेक्ट्रॉन्स, n-1 शेल इलेक्ट्रॉन्स. एंड उसके बाद के जितने भी हैं वो सब क्या हो जाएंगे? n-2 ऑनवर्ड्स. n-2 ऑनवर्ड्स का मतलब ये है कि इसके बाद के जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं दे विल बी ट्रीटेड एज n-2. इसका मतलब वो सारे के सारे इक्वली रिपेल करते हैं, वो सारे बराबर के दुश्मन हैं. they would repel equally. तो यहां पर देख लेते हैं जरा एक बार. अगर nth शेल में है, सो nth शेल में क्या आ जाएगा हमारे पास? रिपल्शन. जल्दी से बोलो. सिग्मा अगर मुझे निकालने को मिल जाए तो सिग्मा कितना हो जाता है यहां पर? 0.35 पर इलेक्ट्रॉन. यहां पर देखो n-1. n-1 में कितना हो जाएगा बच्चों? यस, इफ देर इज s एंड p इट विल बी 0.85 पर इलेक्ट्रॉन. एंड इफ d एंड f ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन होंगे तो उनके लिए इट विल बी 1 पर इलेक्ट्रॉन. 1 पर इलेक्ट्रॉन. सो हियर वी गो. बताओ जरा एक बार इसके लिए क्या हो जाएगा? 1 पर इलेक्ट्रॉन, n-2 ऑनवर्ड्स, ऑल 1 पर इलेक्ट्रॉन. सो ये बात आपको समझ में आई? हल्का सा, इत्तू सा, थोड़ा सा बताइए जल्दी से. तो थोड़ा सा समझ में आई ये बात? तो यहां से आपने देखना है. तो ये थोड़ा बीच में आई विल डेफिनेटली, आप में से कोई भी, अगर आपका अभी कोई भी टॉपिक ऐसा है जिस पे आप क्वेश्चन मुझसे पूछना चाहते हो इंस्टेंटेनियसली, आप, एक व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें हम लोग सब हैं, तो आप उसमें मुझसे क्वेश्चंस पूछ सकते हो. डायरेक्टली आप मैसेज करके क्वेश्चंस पूछ सकते हैं. तो नो इश्यूज एट ऑल. तो आप क्वेश्चंस पूछिए, बिकॉज दिस व्हाटएवर इज बीइंग टॉट इनसाइड द क्लास, if you are practicing on this particular topic and you come across
certain points where you are not comfortable, you are not understanding the language of the question, आपको क्वेश्चन की लैंग्वेज ही समझ में नहीं आ रही है, देन आप मुझसे बात कर सकते हैं कि सर इसमें बता दीजिए। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। लेट्स गेट स्टार्टेड। व्हाट इज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज? effective nuclear charge, effective nuclear charge, which is Z effective. Effective nuclear charge means nucleus outermost electron nucleus से जितना charge feel करेगा after all additions and subtractions, all calculations, so that will be called as effective nuclear charge. It is equal to Z, which is atomic number minus total shielding, total shielding, shielding, total shielding means total repulsion. So this is called effective nuclear charge. Effective nuclear charge is equal to atomic number minus shielding, shielding inner core of shielding screening effect. It is also termed as screening effect or called as screening effect. स्क्रीनिंग मींस स्क्रीन कर देना, पर्दा लगा देना, रिपेल कर देना, रोक देना। तो यहां पे देखिएगा, अब हमारे पास अगर मुझे बोला जाए निकाल के बताइए, देखिए मैं आपको कई सारे एग्जांपल दे रहा हूं। लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ सोडियम, लेट मी गिव यू एग्जांपल ऑफ सोडियम, another example of cesium, another example of cesium, next example of chlorine, next example of iron, next example of not iron, next example would be of palladium. So there are 5 examples, 5 example से आपको चीज समझ में आ जाएगी। So only 5 examples I think would be sufficient. Yes or no? Obviously yes. So पहले सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो। Let's write the electronic configuration of sodium. It will be 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. तो बताओ यहां पर n की वैल्यू क्या हो जाएगी? प्लीज फॉर गॉड सेक बताइए जल्दी से, एक बार थोड़ा सा मजा तो आए पढ़ाने में, थोड़ा मजा आना चाहिए बच्चों, याद रखना है। इट्स नॉट यू ओनली हु वांट्स टू एंजॉय द केमिस्ट्री, एंजॉय करना चाहते हो केमिस्ट्री इनसाइड द क्लास, टीचर ऑल्सो वांट्स द सेम। तो टीचर को भी जरूरत है कि आप लोगों की तरफ से रिस्पॉन्ड करें आप प्लीज। तो सोडियम के लिए मैंने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, अब मैंने सीजियम के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखा, 1s2 फर्स्ट ऑर्बिट, then 2s2, 2p6, then 3s2, 3p6, 3d10, and then there will be 4s2, 4p6, 4d10. I know the configuration. If you don't know the configuration, आप मुझसे बात, आप प्रैक्टिस कीजिएगा, इसमें तो बात भी करना नहीं है। Then 4f0, then 5s2, 5p6, and then 6s1. Next one is there is, it will be 4th orbit, it will be 5th orbit, and the last electron would be present in 6th orbit. Clear है ना बेटे? Next में क्लोरीन, in case of chlorine, if I am writing for chlorine, क्लोरीन के लिए जरा एक बार लिखते हैं, क्लोरीन के लिए लिखते हैं तो क्या आ जाएगा मेरे पास? इट विल बी 1s2, 2s2, 2p6, then 3s2 and then 3p5. Next one, if I write the electronic configuration for iron, so it will be 1s2, d block element है तो d सब शेल में इलेक्ट्रॉन जाएगा लास्ट वाला, then 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 3d6 and 4s2. This is the electronic configuration of iron. Next, palladium, 1s2, palladium 46, palladium 46. You should remember, आप लोगों को एटॉमिक नंबर्स पता होने चाहिए, और वो तब पता होंगे, देन एटॉमिक नंबर आप लोगों को तभी पता होंगे, एटॉमिक नंबर्स। मनोज सर गुड आफ्टरनून, नमस्कार सर, क्लास में हूँ, 4:30 फ्री होते ही करता हूँ सर, हाँ 5 बजे करता। तो बच्चों अब यहां से आगे बढ़ जाते हैं। तो यहां पर आप देखिएगा, अब मैं आप लोगों के लिए, इफ यू डोंट रेस्पॉन्ड इनसाइड द क्लास, आई विल यूज दैट लैंग्वेज विच इज यूज्ड बाय कालकेय इन बाहुबली।
तो यहाँ पे अन्ना निंगा, यहां पर देखो जरा एक बार, ये आ गया 1s2, दिस इज 2s2, 2p6, देन 3s2, 3p6, 3d10, then 4s2, 4p6, then 4d10, and 4f0 and 5s0. So remember, it is the only element जिसमें वैलेंस शेल में d इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो लास्ट वालों को आप यहां से एलिमिनेट कर देंगे, ये खाली है, खाली को लिखने की जरूरत नहीं है। बीच में खाली आता है तो लिखिए लास्ट जिसे बीच में 4f ऑर्बिटल सबशेल इज अनफिल्ड, empty or vacant, so you can write it down. But if it is outermost, you need not to write the vacant because there are infinite orbits around nucleus. So you have to mention only those orbits wherein electrons are present. So यहां पर अब हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा, जल्दी से बताइए। इसमें ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया। यहां पर देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। नेक्स्ट में आ जाओ 1 2 3 एंड देन 4। सो यहां पर देखो बच्चों, दिस विल बी n, this will be n minus 1, and whole this will be n minus 2. After n minus 1, whatever is left will be taken as n minus 2. यानी n minus 1 के बाद जो भी बचेगा उसे n minus 2 ही लेकर चलेंगे। तो n minus 1 का मतलब लास्ट वाले को क्या लेकर चलेंगे, n, second last n minus 1, and after that everything is n minus 2. Am I clear? Clear, clear, clear. चलो नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। These whole, it will be n minus 2, n minus 3, n minus 4, but doesn't matter. These all will be considered as n minus 2 because they will repel 1 per electron. So there is no differentiation whether it is D or F. They would repel equally. Now in this case it is nth, it is n minus 1, it is n minus 2. Next one, it is nth, it is n minus 1, it is n minus 2, and then n minus 2 onwards तो सारे ही बराबर होते हैं। नेक्स्ट में it is nth, it is n minus 1, it is n minus 2 onwards, all are equal. Now let's find the electron, let's find the effective nuclear charge. एक बार निकालो सब लोग effective nuclear charge. In this case effective nuclear charge, shielding, let's find shielding here. So in this case shielding is represented by Slater's constant sigma. So it is given by, so here shielding will be, it is only 1 electron. So in nth orbit there is no electron, in nth there is no test, after test electron nothing would be left. ये क्या हो जाएगा, this will be n minus 1 and this will be n minus 2. So shielding will be n into 0 because nth orbit में कोई भी रिपेल करने वाला नहीं है। There is no electron which can repel from nth orbit. Next one is plus, हमारे पास क्या आ जाएगा, n minus 1 into 8, n minus 1 into 8, n minus 1 p, n minus 1 s and p. s और p के लिए क्या होता है, s और p के लिए मैंने क्या बताया था आपको, बताओ जरा एक बार। s और p के लिए n minus 1 के लिए कितना होता है, n minus 1 के लिए होता है 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। अगर हम d और f के लिए बात करेंगे तो 1 पर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या आएगा बच्चों, देखो जरा एक बार, ये आ जाएगा n minus 1 s and p, कितने हैं n minus 1 में s and p, सीधे लिख देते हैं जरा एक बार, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे लिख देते हैं यहां पर 0। तो ये आ जाएगा हमारे पास 0 इंटू 0.35। तो मैं इसे लिख दे रहा हूं जरा एक बार भाई, हियर वी गो। यहां से देखो ये कितना आ जाएगा मेरे पास ns में, 0 इंटू 0.35 प्लस कितना आ जाएगा यहां से 8 इंटू 0.85 और प्लस n माइनस 2 में कितने मेरे पास 2, तो 2 इंटू 1, तो शील्डिंग कितनी आ गई मेरे पास 0.85 इंटू 8, 0.85 इंटू 8, जरा मल्टीप्लाई करके मुझे बताओ कितना होता है बच्चों, 0.85 इंटू 8, प्लीज टेल मी आफ्टर 0.85 into 8. 0.85 into 8 will be 6.8, I guess. 6.8, 0.85 into 8, 6.8. So it will be 6.8 plus 2. So it will be 8.8, 8.8. Shielding is 8.8. Effective nuclear charge कितना हो जाएगा?
it will be equal to 11 minus 11 means sodium is 11 minus 8.8 11 minus 8.8 that is 2.2। इसका मतलब ये हुआ कि सोडियम में आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन को सिर्फ 2.2 प्रोटॉन अट्रैक्ट कर रहे हैं। सो इट वुड बी वेरी इजी फॉर नॉन मेटल्स टू टेक अवे दिस इलेक्ट्रॉन, टू स्नैच दिस इलेक्ट्रॉन। इस इलेक्ट्रॉन को स्नैच अवे करने का बढ़िया मौका है। व्हाई? because it is only being attracted by 2 protons from the nucleus. So these elements, such elements which have very low effective nuclear charge are called as metals. They lose electron very early. next की तरफ मूव करते हुए समझ में आ रही है ना चीजें? मैं अपनी तरफ से एफर्ट लगाऊंगा, आप लोग देखिए अभी शुरू में। आफ्टर दैट ऑब्वियसली थिंग्स with the passage of time, the intensity will definitely decline if you don't participate. Next one is here. यहां पर देखो जरा एक बार, इसके लिए बात करेंगे। इसमें भी हमारे पास nth ऑर्बिट में कोई और इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इसके लिए अगर मुझे शील्डिंग निकालनी पड़ जाए तो मेरे पास शील्डिंग कितनी आ जाएगी? इसके लिए शील्डिंग निकाल रहा हूं मैं पूरे के लिए, तो शील्डिंग कितनी आ जाएगी मेरे पास? ये आ जाएगा 8 इंटू 0.85। ये 8 कहां से आया? यहां से आया। उसके बाद ये n-1 है, और उसके बाद सारे के सारे कितने हैं? n-2। n-2 में कितने बचे? 55 माइनस 8, 55, 54 माइनस 8, 46। So this will be 46. So here it will be 46 into 1. So what is 46 into 8? It will be 54. Is it 46? Yeah. So it will be 6.8 and this 52.8, 52.8 इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज कितना हो जाएगा? 55 माइनस 52.8 दैट इज 2.2। तो ये भी मेटल है। जब भी 2.2 आ जाएगा तो मेटल ही होगी। ऊपर से नीचे की तरफ इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज नियरली कांस्टेंट रहता है, लेफ्ट टू राइट इट इंक्रीजेस। इसमें निकाल के देखते हैं। क्लोरीन में देखिएगा, व्हाई वी कॉल क्लोरीन एज नॉन मेटल? बिकॉज इसमें से इलेक्ट्रॉन निकालना थोड़ा मुश्किल होगा। कैसे? यहां पर देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज निकालना है मैंने क्लोरीन के लिए, तो लेट मी फाइंड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज फर्स्ट। शील्डिंग। सो हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन वुड बी रिपेलिंग दिस इलेक्ट्रॉन? 1 माइनस, सो देयर विल बी 2 प्लस 4, सो 6 into 0.35, 6 into 0.35 because they belong to the same orbit where test electron is present. Next one is n-1, n-1 8 into 0.85 plus n-2. How many electrons are n-2? 2। तो 2 into 1 मल्टीप्लाई डिवाइड समझ में आ रहा है? ऑल फ्रॉग्स जल्दी से बोलिए, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटे? यस, सो दिस विल बी इक्वल टू, यहां से क्या हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू 0.6, इट विल बी 2.15 आई गेस, राइट? एक बार देख लेते हैं। 6 3 जा 1.8, सो 1.8 and 1.8 plus this will be how much? This will be how much? 0.35 into 6. Please let me know 0.35. It will be 2.1 I guess. It will be 2.1. 2.1 plus 6.8 plus 2. What is the shielding here? 2.2, 2 plus 6.8, 8.8, 10.1, 10. 2 plus this 10.9, 10.9 is the shielding. So effective nuclear charge कितना हो जाएगा बच्चों? बताओ जरा एक बार। It will be 17 minus 10.9, that is approximately 6.1. Look at it. Here electron is being attracted by 2.2 proton. Here electron is being attracted by 6 protons. It means it is being attracted with a force which is thrice to that of sodium. So that is why losing electron would be impractical for chlorine. Such elements are called non-metals. Am I clear about it बच्चों? एक बार प्लीज बता दें ये क्लियर है। ये मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, दिस वन एंड दिस वन, दीज टू आर होमवर्क आपने करने हैं। तो ये 3 एग्जाम्पल क्लियरली समझ में आए? आपको ये तीनों एग्जाम्पल समझ में आ चुके हैं? फर्स्ट एग्जाम्पल, सेकंड एग्जाम्पल, थर्ड एग्जाम्पल, एक बार जल्दी से मुझे बताएंगे। आई एम वेटिंग फॉर योर पार्टिसिपेशन। एनीवेज वेट कर लेते हैं, बताइए जल्दी से।
वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस यस सर, क्लियर है, थैंक यू वेरी मच शैलती। चलिए अब जल्दी से आगे बढ़ेंगे। आप में से जो भी बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, ठीक है ना, आप वेरियस पार्ट्स, बिकॉज पीपल हैव ज्वाइंड फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ द कंट्री, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग मिक्स्ड लैंग्वेज, इंग्लिश प्लस हिंदी। ओके, इंग्लिश। तो यहां पर एक बार कुजरा बोल रहे हैं कि समझ में नहीं, ये क्लियर है ना बेटा? देखो एक बार n-1, एक बार लास्ट वाला कितना करते हैं एक बार फिर से देख लो। जो हमारे पास लास्ट शेल है, लास्ट शेल को क्या बोलेंगे? n। जिसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसे क्या बोलेंगे? n। जो हमारे पास सेकंड लास्ट है उसे क्या बोल देंगे? सेकंड लास्ट को क्या बोल दोगे आप लोग? n-1। और उसके बाद के जितने हैं उनमें तो टेंशन ही नहीं है, तो इन्हीं में फर्क आता है। अगर हमारे पास n है, n में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं, सपोज n में 12 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो रिपेल कितने करेंगे? 11, तो एक माइनस करके लिखेंगे। सपोज यहां पर 10 इलेक्ट्रॉन्स है तो रिपेल कितने करेंगे? 9। सपोज यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन्स है तो रिपेल कितने करेंगे? जो इसी ऑर्बिट के इलेक्ट्रॉन को रिपेल कर रहे होंगे। इफ देर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली 1 रिपेल करेगा, बट इफ देर आर ओनली 1 इलेक्ट्रॉन तो देयर विल बी नो अदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द सेम शेल। अगर सेम शेल में कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं है तो उसकी वजह से शील्डिंग नहीं होगी, ठीक है ना? तो याद रखना है, अगर आप बच्चों, अगर ये बात आप समझिएगा, अगर आप किस पे रहते हैं, सपोज आप 5th फ्लोर पे रहते हैं, तो 5th फ्लोर पे आपके साथ लड़ने वाले क्या होंगे? उनकी लड़ाई थोड़ा कम होगी, बिकॉज दे आर जस्ट इंस्टेंट नेबर, बिल्कुल नेबर, क्या है, एडजेसेंट नेबर्स हैं, बिल्कुल आपके नेबर हैं वो। उनके साथ आपकी लड़ाई के चांसेस थोड़ा कम रहेंगे। नीचे वालों के साथ आप आराम से लड़ सकते हो, क्योंकि लिफ्ट में आते जाते कितनी बार आप, लेकिन सेम फ्लोर पे तो आते जाते निकलते ऐसे वैसे मुलाकात होती रहेगी, तो इसलिए उनसे लड़ना थोड़ा फिजिबल नहीं होता, थोड़ा प्रैक्टिकल नहीं होता। लड़ना तो वैसे भी प्रैक्टिकल नहीं होता। तो एग्जाम्पल को बस एग्जाम्पल तक ही रखिएगा। पता चला सर ने बोला था कि मैं तो 5th फ्लोर वाला हूं, 4th फ्लोर वाले का तो सर फोड़ सकता हूं। तो ऐसा नहीं करना है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। ये देखिए बड़ा आसान है, तो आपने अब मल्टीप्लाई करते जाना है। n-1 में देखो, अगर मेरे पास ns है तो n इलेक्ट्रॉन्स के लिए आप क्या करोगे? 0.35 से मल्टीप्लाई कर दोगे इंटू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे हमारे पास? एक्सेप्ट टेस्ट इलेक्ट्रॉन्स। एक्सेप्ट क्या कर दोगे आप? सिंपल लैंग्वेज है, टेस्ट इलेक्ट्रॉन। टेस्ट का मतलब जिसके ऊपर आप कैलकुलेट कर रहे हो उसको आपने छोड़ देना है। अगर मेरे पास n-1 है और s और p में इलेक्ट्रॉन्स हैं तो कितना हो जाएगा? 0.85 पर इलेक्ट्रॉन। और अगर मेरे पास d और f की बात कर रहे हैं तो यहां पर कितना हो जाएगा? 1 पर इलेक्ट्रॉन। और n-2 ऑनवर्ड्स जितने हैं, n-3 डॉट 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 जितने भी हैं, इनसे कितना होता है? 1 पर इलेक्ट्रॉन। मतलब जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन्हें 1 से मल्टीप्लाई कर दो, दैट विल बी शील्डिंग। जितने भी इलेक्ट्रॉन्स है उन्हें 1 से मल्टीप्लाई कर दोगे, दैट विल बी शील्डिंग सिंपली। तो ये बात आपको मैंने यहां पर कैलकुलेट करके बताई, दोबारा से रिपीट कर लेते हैं इसको, कोई इश्यू ही नहीं है। देखो यहां पर nth में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 1, तो टेस्ट इलेक्ट्रॉन को छोड़ दो तो यहां पे 0 बचेगा, तो 0 इंटू 0.35 कर दिया हमने। दूसरे में आ जाते हैं, ये n-1 है, क्या यहां पर d इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या यहां पे f इलेक्ट्रॉन है? नहीं। क्या यहां पे s और p है? यस, s और p है। तो 6 + 2 8, तो 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे शील्डिंग को। कितनी शील्डिंग होती है? एक इलेक्ट्रॉन की शील्डिंग होती है 0.85, तो 8 की कितनी हो जाएगी? 8 की हो जाएगी 8 इंटू 0.85, दिस इज 6.8 सिंपली। तो 6.8 इसकी हो गई। और यहां पे देखो n-2 में कितने हैं? 2 इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन है तो 2 1 जा 2, तो दिस विल बी दी शील्डिंग बाय n-2 इलेक्ट्रॉन्स। तो इन सबको जोड़ेंगे तो नेट शील्डिंग आ जाएगी। नेट शील्डिंग आ गई 8.8। अगर मैं उसे न्यूक्लियर चार्ज से घटा दूं, Z माइनस सिग्मा इज इक्वल टू इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, सिंपल। तो आप ऐसे करके देख सकते हो। वंस यू प्रैक्टिस, स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, इट विल बी इजी। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इन दो को निकाल के देखिए और मुझसे मेरे साथ शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप में मैं हूं, आप सर्च करेंगे तो मिल जाएगा, तो आप मेरे साथ शेयर करना है इसको, ठीक है? अगर आपको कोई भी पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज डू शेयर। नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां पर आप डायरेक्टली शेयर कर सकते हैं, और आपके साथ अगर आपको मेरे हैंड रिटन नोट्स भी चाहिए तो मैं हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकता हूं। आई कैन प्रोवाइड यू द शॉर्ट नोट्स, हैंड रिटन नोट्स, जिनमें एक्यूरेसी होगी, मीन्स आप समझ लीजिए पूरे परफेक्टली एक्यूरेट नोट्स।
so you cannot compare it with the material, these can be provided to you. तो यहां पर जल्दी से आगे बढ़ते हुए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज की, अब थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए। अब बात करते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जितना ज्यादा होगा, जितना इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना उतना मुश्किल होगा। इसका मतलब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, एक बार मैं रिपीट कर देता हूं आपके लिए, नोट कर लेना है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज inversely proportional to reactivity. If there is a high effective nuclear charge, reactivity कम हो जाएगी। Inversely proportional to reactivity. Effective nuclear charge reactivity के inversely proportional होता है, reactivity of metal. Reactivity of metal. Effective nuclear charge क्या आ जाएगा? Will be directly proportional to ionization energy. अगर effective nuclear charge ज्यादा है, ionization energy would be high. Why? Because it would be difficult to remove the electron which is being attracted strongly. जो इलेक्ट्रॉन strongly attract हो रहा है उसे रिमूव करना थोड़ा मुश्किल होगा। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू AR रहमान। AR रहमान के क्या हो जाता है? AR का मतलब यहां पर क्या है? एटॉमिक रेडियस। एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो एटॉमिक रेडियस घटेगी। दैट इज व्हाट हैपेंस फ्रॉम लेफ्ट टू राइट व्हेन वी मूव in a period from left to right. On moving in a period from left to right, atomic radius decreases because effective nuclear charge increases. That is the cause. यही कारण है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा? will be inversely proportional to stability of cation. तो ये छोटी छोटी बातें जो आपको याद रखनी है। चलिए आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू मेटालिक कैरेक्टर। मेटालिक कैरेक्टर के क्या हो जाएगा? इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो दिस इज नॉन मेटालिक कैरेक्टर के क्या हो जाएगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो ये छोटी छोटी बातें आप दिमाग में रख लें, नोट करते जाएं। नोटबुक लेके बैठे होंगे आप, आई होप कि आप नोटबुक लेके बैठे होंगे। इफ नॉट दैट then I would request the coordinator ma'ams and sirs, please make sure that students are sitting with their notebooks open and writing down the important points which are being taught inside the class. So here we go. यहां पर देखें, अब बात करते हैं एटॉमिक रेडियस की। What is एटॉमिक रेडियस? अब थोड़ा इजी पड़ेगा आपको क्योंकि यहां पर थोड़ा सिस्टमेटिक हो जाएंगी चीजें। तो व्हाट इज एटॉमिक रेडियस? एटॉमिक रेडियस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। यहां पर देखिएगा, एटॉमिक रेडियस के बारे में एक बार बात कर लेते हैं। एटॉमिक रेडियस, तो एन एटम डजंट हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री। आपको मालूम है एक एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। मतलब अगर कोई आपसे बोलता है कि एटॉमिक रेडियस, इट मींस ही डजंट नो अबाउट अ प्रिंसिपल which is very very famous principle. So एक एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों नहीं होती है? जल्दी से बोलिएगा, एटम की एक वेल डिफाइंड बाउंड्री क्यों नहीं होती है? प्लीज लेट मी नो व्हाई एम आई सेइंग दैट एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। यानी एटम के लिए कोई लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल भी नहीं है, एक वेल डिफाइंड बाउंड्री भी नहीं है। मतलब आप ये नहीं बोल सकते कि एटम ये होगा, बस इस एरिया में इलेक्ट्रॉन होगा। यू कैन नॉट से। एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। इलेक्ट्रॉन यहां भी मिलेगा, यहां भी मिलेगा, इलेक्ट्रॉन यहां भी होगा, यहां भी होगा। यहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी कम होगी, यहां पे प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा होगी। तो इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर आपको प्रोबेबिलिटी फैक्टर, व्हाई डू वी से कि एटम की बाउंड्री डिफाइन नहीं होती है? जरा प्लीज एक बार इस पे प्रकाश डालिए, प्लीज प्लीज लेट मी नो, एक बार बताएं कि मैंने ये सेंटेंस अगर बोला है कि एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती, यू हैव ऑलरेडी रेड इट, आप लोग ऑलरेडी इसे पढ़ चुके हो, इस चैप्टर को पढ़ चुके हैं, विच इज एटॉमिक स्ट्रक्चर। एटॉमिक स्ट्रक्चर में एक लॉ, एक रूल आता है, एक प्रिंसिपल आता है, विच इज कॉल्ड हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या कहता है? यह कहता है कि किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की गति, संवेग तथा यथा स्थिति का नितांत वर्णन, यथार्थ वर्णन नितांत असंभव है। मतलब समझे? नहीं समझे तो सुनिए,
it says that it is impossible to determine simultaneously the exact position and momentum of a microscopic particle as small as electron. It means for subatomic particles, याद रखिएगा एक बार फिर से हिंदी में, सर हिंदी प्लीज, यस EMRS बोल रहे हैं सर, हिंदी प्लीज, हिंदी में ही बोल देते हैं। किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की, ये तो मैंने रटा हुआ है बाकी का आता हो या ना आता हो, लेकिन ये मैंने रट रखा है। किसी गतिमान अति सूक्ष्मतम कण की संवेग तथा स्थिति का नितांत वर्णन, यथार्थ वर्णन नितांत असंभव है। तो इसे इंग्लिश में क्या बोलेंगे, देखो कितना सिंपल हो जाता है। इट इज इम्पॉसिबल टू डिटरमिन साइमल्टेनियसली the exact position and momentum of a microscopic particle or subatomic particle as small as electron. Am I clear? एक बार फिर से सुनिए, किसी छोटे पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ निकालना असंभव है। अगर पोजीशन सही निकालने की कोशिश करेंगे तो मोमेंटम गलत आ जाएगा, और मोमेंटम सही निकालने की कोशिश करेंगे तो पोजीशन गलत आ जाएगी। इसे कहा जाता है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। क्या कहते हैं इसे? हाइजेनबर्ग्स। तो याद रखिएगा, एक एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है, किसी भी एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं होती है। किसके अकॉर्डिंग? हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। व्हाट इट सेज? इट सेज सिंपली कि आप कभी भी एक पार्टिकल की पोजीशन और मोमेंटम दोनों को एक साथ एक्यूरेटली डिटरमिन नहीं कर सकते अगर वो बहुत छोटा है, एज स्मॉल एज इलेक्ट्रॉन, यानी कोई सब एटॉमिक पार्टिकल है तो उसके लिए ये लगेगा। सिर्फ सब एटॉमिक पार्टिकल्स के लिए लगता है। कभी आप इसे क्रिकेट बॉल के ऊपर लगा दो, क्रिकेट बॉल के ऊपर घूमते हुए पंखे के ऊपर कई बार बच्चे क्या करते हैं, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लगा देते हैं। ये पॉसिबल नहीं है, ये सिर्फ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल के लिए है। तो नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं। तो एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री कभी नहीं होती है, लेकिन एटम की वेल डिफाइंड बाउंड्री नहीं है। भाई मेरी क्या बाउंड्री है? मैं ऐसे हाथ कर सकता हूं, ऐसे हाथ कर सकता हूं, मेरी रेडियस कैसे निकालोगे आप? मैं क्लास के अंदर आप देखिएगा, कभी मेरा हाथ इधर जा रहा है, कभी इधर जा रहा है, कभी यूं कर रहा हूं, तो मेरी तो बाउंड्री डिफाइन ही नहीं है। इसका मतलब ये हो गया, लेकिन मैं एक भीड़ में खड़ा हूं जहां पे मुझे हाथ हिलाने का मौका नहीं मिल रहा है। एवरीबडी इज टचिंग मी फ्रॉम दिस साइड, फ्रॉम दिस साइड। सो अगर टच कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? अब मेरी बाउंड्री डिफाइंड हो सकती है। क्यों? अब क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। इसका मतलब बॉन्डेड स्टेट में तो आप एटॉमिक रेडियस को डिफाइन कर सकते हो, लेकिन आइसोलेटेड एटम के लिए एटॉमिक रेडियस नाम की चीज डिफाइन नहीं होती है। तो यहां पर देखिएगा, अब हमारे पास बात आ जाती है, व्हाट इज एटॉमिक रेडियस देन? एटॉमिक रेडियस इज टेकन एज द इफेक्टिव साइज ऑन द बेसिस ऑफ डोका। डोका, डू यू अंडरस्टैंड डोका गाइस? बच्चों एक बार बताएं मुझे, डोका समझते हैं आप? डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच में अब मैं आपको दिखाता हूं एटॉमिक रेडियस का रियल एग्जांपल। देखिएगा यहां पर, देखिएगा डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। डू यू नो? एनीबडी नोज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? कोई समझता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच? प्लीज लेट मी नो। आप में से कोई? यस, ये सिंगरदीप, एस सिंगरदीप, बताइए आप। EMRS एस सिंगरदीप, प्लीज टेल मी। जो जिन्होंने हिंदी प्लीज लिखा है वो मुझे बताएं कि आपको मालूम है ना डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है। डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच क्या होती है? जहां तक आप एक एटम के नजदीक दूसरा एटम आ सकता है, उसके बाद वो क्या हो जाएगा? रिपेल होना शुरू हो जाएगा। तो आप समझिए कि हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम है। देखो यहां पे बड़ा मजा आएगा आपको ये बात समझने में, अगर आप समझेंगे तो। इफ यू आर नॉट सिटिंग इनसाइड द क्लास विद योर माइंड ओपन, देन इट विल बी डिफिकल्ट। तो यहां पर देखो जरा, एक बच्चों आप प्लीज अंडरस्टैंड करें इस चीज को कि यहां से हमारे पास क्या है। ये वाई एक्सेस पे मैंने क्या ले लिया? वाई एक्सेस पे मैंने ले लिया एनर्जी। वाई एक्सेस पे मैंने क्या लिया है? एनर्जी लिया है। और एक्स एक्सेस पे मैंने क्या लिया है? एक्स एक्सिस पे मैं क्या लेके चल रहा हूं? इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस। यहां पर क्या लेके चल रहा हूं मैं? डिस्टेंस। क्या लेके चल रहा हूं? डिस्टेंस। इट इज डिस्टेंस।
वो एक्स एक्सिस पे क्या लेके चल रहा हूं बेटे, डिस्टेंस। वाई एक्सिस पे क्या लेके चल रहे हैं हम लोग, एनर्जी। तो अब जरा यहां से देखो, एनर्जी और डिस्टेंस, इन दोनों की कंपैरिजन हाइड्रोजन एटम के लिए ले लेते हैं, सबसे छोटा होता है। तो हाइड्रोजन एटम, ध्यान से देखो, ये मेरे पास एक हाइड्रोजन एटम है प्लस दूसरा हाइड्रोजन एटम है। दे आर फार अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बहुत दूर हैं। अब इन हाइड्रोजन एटम ने एक दूसरे को अप्रोच करना शुरू किया। आप किसी को अप्रोच कब तक करोगे, आप मुझे बताइए भाई। अगर आप किसी को अप्रोच कर रहे हो इन स्पॉन्टेनियसली, नेचुरल अर्ज है, अट्रैक्शन है, तभी तो अप्रोच करोगे ना। रिपल्शन है तो अप्रोच नहीं करोगे, दुश्मन के पास कौन जाता है भाई। तो यहां पे देखिएगा, तो अट्रैक्शन है तभी तो एक दूसरे के पास जाएंगे। तो ये एटम एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, अट्रैक्ट कर रहे हैं। और अट्रैक्शन से एनर्जी क्या होती है, डिक्रीज। तो अट्रैक्शन मींस पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगी। तो ये एटम एक दूसरे के पास आना शुरू हुए when they approached sufficiently close to each other। जब एक दूसरे के बिल्कुल पास आ गए तो एनर्जी डिक्रीज करना शुरू कर गई। और यहां पर आने के बाद आप देख रहे हो ये वाला पॉइंट, इस पॉइंट तक अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है। अगर उससे नजदीक आ गए, अगर उससे नजदीक आ गए तो उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपल्शन डोमिनेट कर जाएगा। इसका मतलब जब ये यहां तक आएंगे तो अट्रैक्शन डोमिनेट कर रहा है, अगर उसके बाद बहुत नजदीक आ गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी। इफ यू अंडरस्टैंड हिंदी तो बहुत सिंपल सी कहावत है, मुनासिब फासला रखिए भले कोई भी रिश्ता हो, बेहद नजदीकियों में भी घुटन महसूस होती है। तो ये आपने याद रखना है, बहुत नजदीकी अगर आ जाएंगे तो रिपल्शन हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास आ जाती है 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर। तो 74 पिकोमीटर, 74 पिकोमीटर तक तो ये एक दूसरे के पास आएंगे और उसके बाद एक दूसरे के पास नहीं आएंगे। इसका मतलब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड लेंथ दैट इज 74 पिकोमीटर्स। अब आप समझ गए होंगे, अब आप समझ गए होंगे कि बॉन्ड लेंथ का मतलब क्या होता है। बॉन्ड लेंथ का मतलब ये नहीं होता कि दो एटम एक दूसरे से धागे के साथ बंधे हुए हैं या उन्होंने एक दूसरे का हाथ पकड़ा हुआ है। दैट डजंट मीन बॉन्ड। बॉन्ड का मतलब होता है द डिस्टेंस एट विच अट्रैक्शन इज मैक्सिमम। वो डिस्टेंस दो एटम के बीच में जहां पे उनके बीच में क्या है, अट्रैक्टिव फोर्सेस मैक्सिमम है, उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। दैट डिस्टेंस इज कॉल्ड एज बॉन्ड लेंथ। बॉन्ड लेंथ कोई रियल चीज नहीं होती है, ये क्या है बच्चों, अट्रैक्टिव फोर्स है। जब मैक्सिमम होता है तो उस डिस्टेंस को बॉन्ड लेंथ कहते हैं। एम आई क्लियर, एक बार पर गॉड से बोल दो यार कि बात समझ में आ गई है। मैं ऑडिबल कहां से होऊंगा, मैं बोल ही नहीं रहा, सिर्फ बोलने का नाटक कर रहा हूं, तुम लोगों से कैसे निकलवाऊं। तो यहाँ पर देखिएगा यार, वी आर को टीचर्स, हम लोग को टीचर्स है जब तक। तो यहाँ पे मैं बोल ही नहीं रहा था, सिर्फ ऐसे कर रहा था लिप सिंपली। तो यहाँ पर आप लोगों ने, चलो शुक्र है कि आप लोगों ने एक बार बोला यू आर नॉट ऑडिबल। तो ये देखिए, अब यहां से हमारे पास यहां तक क्या होगा, अट्रैक्टिव फोर्सेस डोमिनेट करेगा। उसके बाद क्या हो जाएगा, रिपल्सिव फोर्सेस डोमिनेट कर जाएगा। ये क्या हो जाएगा, रिपल्शन वाला एरिया है, ये वाला क्या है, अट्रैक्शन वाला एरिया है। समझ गए हैं आप लोग, जल्दी से एक बार बता दीजिएगा। इजी पीजी है बेटे। अब नेक्स्ट की तरफ मूव करेंगे। यहां पर हमारे पास एटॉमिक रेडियस, अब मैं आप लोगों के लिए इसे हाईलाइट कर देता हूं। एटॉमिक रेडियस इज टेकन एज द इफेक्टिव साइज बेस्ड ऑन डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। यानी एक एटम दूसरे एटम के जितना नजदीक जा सकता है, यानी दैट जहां तक अट्रैक्टिव फोर्सेस आ रहे हैं, रिपल्शन जहां तक ना हो, वो छोटी से छोटी डिस्टेंस को कहा जाता है डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। अब यहां पर देखिएगा, ऑफ वन एटम टू अनदर,
इन एन एटम ऑफ अ बॉन्डेड सिचुएशंस, यानी जब भी एटॉमिक रेडियस को आप डिफाइन करेंगे तो आप बॉन्डेड एटम्स में ही डिफाइन करोगे, नॉन बॉन्डेड एटम में डिफाइन मत कर देना, गलत हो जाएगा। आइसोलेटेड एटम के लिए एटॉमिक रेडियस का कोई मतलब नहीं होता है। नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार की होती है। इट इज ऑफ 4 टाइप्स, ये 4 प्रकार की होती है। कोवेलेंट रेडियस, देन वैंडरवाल रेडियस, वॉल, नॉट वॉल, इट इज वॉल, WAAL, वैंडरवाल रेडियस। तो वैंडरवाल रेडियस, नेक्स्ट वन इज आयनिक रेडियस, एंड नेक्स्ट वन इज मेटालिक रेडियस। सो लेट्स हैव ईच वन ऑफ देम। यहां पर देखिएगा, ये आपके लिए बड़ा इजी है, तो यहां तक अब देखो आपको एकदम से समझ में आएगा। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कोवेलेंट रेडियस की। कोवेलेंट रेडियस इज व्हाट? The covalent radius of an element represents the contribution of that element to the length of bond which is predominantly covalent. Let's not focus on the language. मोटे मोटे तौर पे आपको बताता हूं इफेक्टिवली इसका मतलब क्या है। What does that mean? That means in a covalently bonded atom, in covalently bonded atoms, the half of the internuclear distance is called, क्या कहा जाता है उसे? कोवेलेंट रेडियस। तो याद रखिएगा यहां पर इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, आई एम राइटिंग इट हियर, और थोड़ा इफेक्टिव लिखने की कोशिश करेंगे। इन अ कोवेलेंट बॉन्ड, इन कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स में, कोवेलेंटली बॉन्डेड एटम्स, half of the internuclear distance, half of the internuclear distance, half of the internuclear distance, internuclear distance, internuclear distance, internuclear distance, half of the internuclear distance is called कोवेलेंट रेडियस। एक बार फिर से सुन लीजिए, दिस इज कॉल्ड कोवेलेंट रेडियस, इसको आप कोवेलेंट रेडियस बोलेंगे। अब मैं आपको थोड़ा पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन से दिखाता हूं। देखो, ये मेरे पास दोनों एटम सेम है, ये दोनों एटम क्या है? सेम, बोथ आर सेम एटम्स। यहां पर देखिए, ये हमारे पास ए एटम है, तो और ये भी हमारे पास कौन सा एटम है? ए एटम। दे आर मेयरली टचिंग ईच अदर, एक दूसरे को जस्ट टच कर रहे हैं। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा बेटा? यहां से हमारे पास, मैंने मान लिया इसकी रेडियस, यहां से यहां तक इसकी रेडियस कितनी है? RA। यहां से यहां तक इसकी रेडियस भी कितनी है? RA। अब देखो, ये जो बीच की इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, दिस इज D। क्या है ये? D है। व्हाट इज इट? D। अगर ये D है तो हमारे पास क्या आ जाएगा? हमारे पास आ जाएगा कोवेलेंट रेडियस, RC इज इक्वल टू आ जाएगा D/2। ये किसमें आ जाएगा? फॉर एग्जाम्पल, जैसे क्लोरीन में देखो, जैसे क्लोरीन में ये डिस्टेंस हमारे पास कितनी है? दिस डिस्टेंस इज अप्रोक्सीमेटली 1.4 एंगस्ट्रॉम। अब यहां पर देखो, कार्बन में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.54 एंगस्ट्रॉम। यहां पर देखो, कार्बन डबल बॉन्ड में ये जो बॉन्ड लेंथ होती है 1.36 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की बात करूं तो ये जो बॉन्ड लेंथ होती है, दिस इज 1.2 एंगस्ट्रॉम। आप प्लीज नोट करते जाए। अब इसमें कोवेलेंट रेडियस कितनी हो जाएगी? व्हाइट से लिख लेते हैं। यहां पर कोवेलेंट रेडियस कितनी हो जाएगी ऑफ Cl? कोवेलेंट रेडियस ऑफ Cl कितनी हो जाएगी? 1.4/2, दैट इज 0.70 एंगस्ट्रॉम। इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी हो जाएगी बच्चों? इसकी कोवेलेंट रेडियस आ जाएगी 0.77 एंगस्ट्रॉम। इसकी कोवेलेंट रेडियस कितनी हो जाएगी? कोवेलेंट रेडियस ऑफ कार्बन डबल बॉन्ड, दैट विल बी इक्वल टू 1.36, यानी इट विल बी 0.68 एंगस्ट्रॉम। This covalent radius will be 0.6 angstrom. Am I clear? एक बार प्लीज मुझे बता दें कि ये चीज बिल्कुल क्लियर है। दिस इज एब्सोल्युटली क्लियर। अगर सिमिलर एटम दिए गए हो, क्लोरीन, हाइड्रोजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, देन दिस केस वुड बी अप्लाइड।
If different atoms are given, then you have to take En difference. En difference means electron negativity difference also. So yahan pe that will also be taken into account that time, right? So here AA, if we are discussing RC equals to DAA by 2, RC will be equal to DAA by 2. RC will be equal to DAA by 2. Am I clear? Yes. सबने रेस्पॉन्ड कर दिया है, वेरी गुड. दिस टाइम हाउ मेनी रेस्पॉन्डेड? बहुत अच्छा है बेटा. इस बार कम से कम आप में से कुछ ने रेस्पॉन्ड नहीं किया है. नेक्स्ट पे आ जाते हैं. अगर डिफरेंट एटम्स आ जाएं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास एक एटम ए है, ये एटम मेरे पास बी है, दो एटम आ गए. दीज आर डिफरेंट एटम्स having sufficient or significant difference in their electron negativity. In that case they would क्या करेंगे ये एक दूसरे के साथ में? जल्दी से बताओ. इन दैट केस एटॉमिक रेडियस वुड बी, एटॉमिक रेडियस, सपोज इट्स रेडियस इज आर ए एंड इट्स रेडियस इज आर बी. सो दिस DAB, दिस इज DAB. सो रिमेंबर DAB, आपको यहां पे याद रखना है, DAB क्या हो जाएगा? DAB विल बी लेसर देन RA प्लस RB. RA प्लस RB से छोटा हो जाएगा. इसका मतलब दे आर इंटरसेक्टिंग, थोड़ा सा एक दूसरे को ओवरलैप कर गए हैं. तो इस रीजन को आपने क्या करना पड़ेगा, यहां से इसका हाफ यहां से माइनस करना पड़ेगा. कितना होगा ये? RA प्लस RB माइनस 0.09 इंटू EN, डेल्टा EN का मतलब इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का डिफरेंस, ये बात आप समझिएगा. बड़ा आसान सा है ये, इस पे क्वेश्चन लगातार आपसे पूछे भी जाते हैं. तो यहां पे याद रखिएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा? DAB. दिस विल बी इक्वल टू RA प्लस RB माइनस ऑफ 0.09 इंटू काई A और XA माइनस XB. दिस विल बी, XA means electron negativity of A, XB means electron negativity of B. What is electron negativity? थोड़ा बहुत आइडिया है. इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी क्या होती है? एक बॉन्डेड एटम क्या करता है? कोई भी बॉन्डेड एटम शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? पुल करता है. तो दैट पुलिंग पावर इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. द टेंडेंसी ऑफ अ बॉन्डेड एटम टू attract the shared pair of electron towards itself is called electron negativity. उसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी बोलेंगे. एक बार फिर से, the tendency of a bonded atom to attract the shared pair of electrons towards itself is called इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी. तो A की अट्रैक्टिंग पावर कितनी है? XA. B की अट्रैक्टिंग पावर कितनी है? XB. मॉड्यूलस ले लेंगे, 0.09 से मल्टीप्लाई करके माइनस कर देंगे, तो हमारे पास DAB आ जाएगी. DAB आ जाएगी तो R आ जाएगा हमारे पास, दैट विल बी इक्वल टू RAB बाय 2. तो आप यहां से कोवेलेंट रेडियस निकाल सकते हो कि नहीं निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर. वी कैन फाइंड द कोवेलेंट रेडियस. तो अब जल्दी से नेक्स्ट की तरफ मूव कर जाते हैं. बात करेंगे वेंडरवाल रेडियस की, कि वेंडरवाल रेडियस क्या चीज होती है. अब ये वेंडरवाल रेडियस क्या चीज होती है, देखो. अब दो मॉलिक्यूल हैं, आप प्लीज नोट करना इस बात को. दो मॉलिक्यूल हैं. अब हाइड्रोजन को आप लेकर चलो, आप नियॉन को लेके चलिए, आप अर्गोन को लेके चले, ज़ेनॉन को लेके चलिए. आप लोग इन सब में क्या होगा? ये रिएक्शन तो करते नहीं है. तो एक मॉलिक्यूल का दूसरे मॉलिक्यूल से, जब वो बिल्कुल पास हैं, उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस का आधा निकाल लेंगे, यानी आपस में बॉन्डेड नहीं है, इसका इस मॉलिक्यूल से कोई लेना देना नहीं है. तो अब ये यहां पे रुके हुए कब होंगे? कॉमन सेंस से सॉलिड स्टेट होना जरूरी है. इसका मतलब ये सॉलिड स्टेट में डिफाइन होती है. तो याद रखिएगा, यहां पर आप लोगों ने दिमाग में डालकर रखना है ये बात कि इट इज डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट ओनली. इन सॉलिड स्टेट ओनली. डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट ओनली. डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट ओनली. सॉलिड स्टेट में ही डिफाइन होती है. डिफाइंड इन सॉलिड स्टेट ओनली क्या आ जाता है हमारे पास? लेट्स स्टार्ट. द सम ऑफ van der Waals radii of two atoms is the shortest distance between two immediately adjacent. adjacent का मतलब अगल बगल के, पास atoms either of the same or different element in the structure of solid compound in which they are not bonded to each other. They are not supposed to bond or form any sort of bond. तो यहां से देखेंगे जरा एक बार, सब लोग प्लीज पे अटेंशन टू इट.
ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सपोज मेरे पास एक एटम है ए और इसी के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है बी, ये मेरे पास एटम बी हो गया, ये एटम ए हो गया, ये एक दूसरे को दे आर होल्डिंग ईच अदर। नाउ देयर इज अनदर एटम, प्लीज नोट, यहां पर मेरे पास एक और मॉलिक्यूल है बी और ये यहां पर क्या है ए, ये मॉलिक्यूल ए बी यहां पर फर्दर है। तो आप ध्यान से देखो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस, दे आर एडजेसेंट, तो ये जो बीच की डिस्टेंस है, इस बीच की डिस्टेंस हमारे पास क्या है डी। दे आर इन सॉलिड स्टेट, दे आर नॉट मूविंग, दे आर नॉट अलाउड टू मूव। तो यहां से हमारे पास आर वेंडरवॉल आ जाएगी d/2, आर वेंडरवॉल इज d/2। यहां पे आप एक चीज नोट कर लीजिएगा, देखो आपके सामने मैंने वेंडरवॉल रेडियस दिखाई है, लेकिन उससे पहले आपको एक बात बता देता हूं, यहां पे प्लीज नोट कर लेना ये चीज, क्या नोट कर लेना है कि वेंडरवॉल रेडियस, आर वेंडरवॉल रेडियस इज नियरली, वेंडरवॉल रेडियस क्या होती है, नियरली ट्वाइस ऑफ कोवेलेंट रेडियस, कोवेलेंट रेडियस के लगभग लगभग दोगुने के बराबर होती है। तो इट इज द लार्जेस्ट रेडियस विच इज लार्जेस्ट ऑफ द नॉन रेडियाइज, जितनी भी रेडियाई होती हैं, रेडियस होती हैं, उनमें ये सबसे बड़ी होती है। क्योंकि एटम तो कितना भी दूर हो सकता है ना भाई, आपके घर के बगल में दूसरा घर कितनी दूर बनेगा, हाउ वुड यू डिसाइड, वो तो ठीक है ना, कितनी भी डिस्टेंस हो सकती है। इसका मतलब ये हो गया कि यहां पर जो वेंडरवॉल रेडियाई है उसकी जो डिस्टेंस होती है, वेंडरवॉल रेडियाई कितनी भी बड़ी हो सकती है, तो ये बात याद रखिएगा। बट नॉर्मली मोस्ट ऑफ द टाइम, ऑफ्टनली इट इज नियरली ट्वाइस टू दैट ऑफ कोवेलेंट रेडियस। अगर किसी की कोवेलेंट रेडियस x है तो वेंडरवॉल रेडियाई 2x हो जाएगी। एम आई क्लियर, एक बार प्लीज, क्योंकि हम इतनी देर से बात कर चुके हैं तो अब मुझे लगता है कि हमें इसको और जरा आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। तो यहां पर लाहौल जी, निचर, शैलती और जो भी हैं, प्लीज एक बार बताइएगा मुझे। और अगर आप लोगों को कोई भी, इफ यू नीड एनी सॉर्ट ऑफ असाइनमेंट और एनी सॉर्ट ऑफ जो भी आपको डाउट लेने हैं, सपोज आप कहीं और कोचिंग कर रहे हो सकता है स्कूल में कुछ और चल रहा हो, तो अगर आपका कोई भी डाउट है तो टीचर से आप कनेक्ट कीजिए। वी रियली वॉन्ट यू टू कनेक्ट विद यू गाइस, हम चाहते हैं कि आपके साथ कनेक्शन अच्छे बने ताकि आपका रिजल्ट निकाला जा सके। जो बच्चा अभी फिलहाल, दोज हु आर स्टैंडिंग एट लेवल 1 दे शुड रीच लेवल 10, those who are standing at level 9 they should also reach level 10, so there is no comparison between students। तो आप प्लीज जरूर बताते जाइएगा कि यहां पर कुजरा वालों बच्चों ने एक बार रेस्पॉन्ड किया है, तो आप भी रेस्पॉन्ड करते रहा करें। अब हम बात कर लेते हैं वेंडरवॉल रेडियाई। तो वेंडरवॉल रेडियाई याद रखना है, वेंडरवॉल रेडियाई में एक चीज और भी नोट कर लेना यहां पे, NOTE नोट में, फॉर इनर्ट गैसेस, जितने भी इनर्ट गैसेस हैं, इनर्ट गैसेस, वेंडरवॉल रेडियाई, वेंडरवॉल रेडियाई आर टेकन, वेंडरवॉल रेडियाई ही ली जाती हैं, क्योंकि वो रिएक्शन तो करते नहीं है। अगर वो रिएक्शन करेंगे नहीं, हाँ जी, क्लास के नोट्स मिल सकते हैं, बिल्कुल मिल सकते हैं। आप एक ग्रुप बना लीजिए, आप में से जो सीरियस और सिंसियर लोग हैं वो एक ग्रुप बनाइए, मैं आपको हैंड रिटन नोट्स भी भेज सकता हूं। एंड लेट मी गिव यू वेरी, मतलब एक सिंपल सा आइडिया आपको बता देता हूं कि हैंड रिटन नोट्स आर फार वे बेटर देन यू कैन इमेजिन। जो हैंड रिटन नोट्स हैं अपने, वो जितना आप इमेजिन कर सकते हो उससे कई गुना अच्छे हैं। तो हैंड रिटन नोट्स भी आपको प्रोवाइड कर सकते हैं, तो आप प्लीज जस्ट गेट इन टच। आपको कहीं भी लगता है तो आप एक नंबर पे मैसेज ड्रॉप कीजिए, नंबर आप सभी के पास है। नेक्स्ट की तरफ नहीं है तो प्लीज बता दीजिए, आई विल शेयर, नो इश्यूज एट ऑल। पेस में हमारे पास ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है, आई एम द इंटीग्रल पार्ट ऑफ पेस। तो आप फटाफट से मेटालिक रेडियस पे आएंगे, अगली क्लास में मेटालिक रेडियस पढ़ेंगे हम लोग। चलिए पढ़ ही लेते हैं, अभी 3 मिनट हमारे पास है, लेट्स नॉट वेस्ट टाइम। यहां पर देखें फॉर मेटल्स, यहां पे देखेंगे मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज। अब मेटल हमारे पास क्या होता है, यहां पर देखो जरा एक बार, मेटल हमारे पास क्या होता है, व्हाट इज मेटल। मेटल सपोज मेरे पास M है, इस मेटल में से मैंने क्या कर दिया, यहां से मैंने निकाल दिया वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, तो मेरे पास बचा M+N। तो दिस इज कॉल्ड कर्नेल, इसे क्या बोलते हैं, कर्नेल, इट इज कॉल्ड कर्नेल। क्या बोलते हैं इसे बेटा, कर्नेल बोलते हैं।
तो यहां पर देखिएगा सर वी नीड मोर क्वेश्चंस फॉर प्रैक्टिस, आई विल प्रोवाइड एज मेनी क्वेश्चंस यू वांट, इवन द लेवल यू पीपल डिसाइड द लेवल सर, इजी लेवल, moderate level, brainstormers plus जो लेवल आपको चाहिए, we will provide you the questions, I will provide you the questions, ठीक है ना। बहुत क्वेश्चंस है, आप एक बार जस्ट अपनी रिक्विजिशंस बताइए कि आपको क्या क्या चाहिए। तो जो ग्रुप है उस ग्रुप में सारे जितने भी आपके कोऑर्डिनेटर्स हैं वो भी हैं और साथ में मैं भी हूं, ठीक है ना। तो आप डायरेक्टली डीएम कर सकते हैं। तो ये रहा मेटल्स नेगेटिव, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, दीज आर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। क्या है ये? वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को हटा दो तो जो बनता है उसे कर्नेल कहते हैं। जैसे सोडियम में से क्या बन जाएगा मेरे पास? Na बन जाएगा, Na+, ये कर्नेल हो जाएगा। जैसे कैल्शियम में से Ca2+ बन जाएगा, ये कर्नेल हो जाएगा। जैसे एल्यूमिनियम में क्या हो जाएगा? एल्यूमिनियम 3+ बन जाएगा, ये कर्नेल हो जाएगा। तो दीज आर कर्नेल्स। तो मेटल लैटिस के अंदर, मेटल के लैटिस के अंदर, मेटल के सॉलिड के अंदर, ये जो आप वॉच देख रहे हो, ये जो आपको लश्यर नजर आ रहा है, ये क्या है? मेटल। मेटल की कर्नेल्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट हो रहे हैं, डी एक्साइट हो रहे हैं, तो आपको चमक नजर आ रही है। तो बिल्कुल वैसे ही मेटल की कर्नेल के अंदर क्या होता है? मेटल होती है, मेटल M+, कुछ ऐसे होती है। आपको दिखा देता हूं, देखिए यहां पर M+, एंड देयर इज अ मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके चारों तरफ क्या होता है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है। इसके चारों तरफ क्या है? मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड। इसके चारों तरफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। तो आप में से फिर एक बार फिर से देखिए, मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ये दीज आर मेटल कर्नेल्स, दीज आर मेटल कर्नेल्स, ये मेटल कर्नेल्स हैं। इनके चारों तरफ क्या होगा? मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा। मोबाइल इलेक्ट्रॉन क्लाउड कैसे होगा? इनके बीच में घूम रहे होंगे इलेक्ट्रॉन, ऐसे इलेक्ट्रॉन ऐसे घूमते रहते हैं। दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। दैट इज व्हाई मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। इट इज कॉल्ड मेटल लैटिस। ये क्या है? मेटल का लैटिस है। लैटिस मतलब सॉलिड स्टेट में अरेंजमेंट, सॉलिड एरे, दिस इज कॉल्ड लैटिस, अरेंजमेंट इन सॉलिड स्टेट। अब मेटल एटम के बीच की जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक की, ये क्या हो गई? डी। तो याद रखिएगा Rm इज इक्वल टू हो जाएगा D/2। Rm इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? D/2। तो मेटल मेटल के कर्नेल के बीच की जो डिस्टेंस होती है उसके आधे को क्या कहते हैं? मेटालिक रेडियस। तो नोट कर लें ये बात। फॉर मेटल्स मेटालिक रेडियस इज डिफाइंड एज half of the internuclear distance separating two adjacent metal atoms in metal lattice. Separating two adjacent atoms in metal lattice, that is called metallic radius. तो यहां तक आपने पढ़ा है, क्लास के नोट्स में ग्रुप में ही शेयर करूंगा, वहीं से आप ले लीजिएगा। इफ यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, फील फ्री टू टेक्स्ट, इमीडिएटली व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो उसका रिस्पॉन्स आपको जल्दी से जल्दी जितना हो सकेगा, क्लासेस क्योंकि और भी बहुत सारी होती है, तो बीच क्लास से फ्री होते ही आपको उसका रिस्पॉन्ड किया जाएगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस इवनिंग अहेड, टेक केयर, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीक।